Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In in the last video we have started one topic that is how did the knowledge of ancient text help the reformers. Yesterday we have not discussed whole para of this topic, so today I am going to continue the topic of same para of the previous topic, and also we will start next topic, a new topic also today, that is why so many reformers focused mainly on the women's questions. Okay, and also we will study about the works of Raja Ram Mohan Roy in improving the status of a woman. Okay, so these are the topics which we will start today. So let us see the previous topic. So often whenever he happened to challenge an evil social practice that seemed harmful, he cited a verse from ancient sacred text that supported his point of view. Whenever he found that any suspect or any confusion these things happened in previous or not, and after that he goes through ancient textbook and he find out that several supported points of view. By doing so, he tried to show why he was doing so, because he trying to show that the evil practice as it existed at present was against early tradition. जो भी इस समय चल रहा है वो उस जमाने के विरुद्ध था, उनका ये कहना था. Likewise, another great reformer, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient text to suggest that widows could remarry. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुसार भी उन्होंने जब एंशियंट टेक्स्ट पढ़ा तो उन्होंने भी कहा कि इसमें विडो रीमैरिज के इसके लिए भी विडोज कुड रीमैरी, विडो भी रीमैरी कर सकती हैं, मीन्स फिर से पुनः विवाह कर सकती हैं. स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, also quoted the Vedas to show that many social evils of today had no religious sanction. स्वामी विवेकानंद का भी मानना है कि उन्होंने भी वेदा से फाइंड आउट किया है, कुछ को देखा है, उन्होंने भी दिखाया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि आज जो सोशल इविल्स जो हम देख रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं था जो कि रिलीजियस सेक्शन में उसको रखा गया हो. Not only this, many young intellectuals and reformers of Bombay and Madras presidencies like Veerasalingam Pantulu quoted from the ancient scriptures to condemn the prevalent social evils. They also find out that some points through ancient text. Even some Muslim scholars like Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to condemn the illiteracy among women and advocated for their education. And also not only Hindu reformers but also Muslim reformers also find out that there was no any no verses from the Quran to condemn the illiteracy among women and also advocated for their education. So let's start today's topic, why so many reformers focused on the women's questions. Now a question generally arises as to why so many reformers focused on the woman's condition in the society. The reasons for these are not too far to seek. Here also one more important question arises, that generally most of the reformers, they have tried to focus on the questions of women, means उन्होंने भी
वुमेंस के कंडीशन के ऊपर निगाह डालने की कोशिश की है। उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया इन सोसाइटी में। फर्स्ट, द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट नथिंग कैन बी डन टू रिमूव द डिफरेंट इविल्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी इफ द मर्दर्स वेर इलिटरेट। पहला उनका यह मानना था कि सोसाइटी से, समाज से हम किसी कुरीति को निकाल करके नहीं फेंक सकते जब तक कि माँ पढ़ी लिखी ना हो। ठीक। हाउ कुड सच मदर्स ब्रिंग अप गुड चिल्ड्रन। अनपढ़ माँ किस तरह से अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा बना सकते जब उसके पास खुद ही नॉलेज नहीं है, खुद ही नहीं कुछ जानती है, तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी। इसलिए पहले माँ का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Second, the reformers felt that if they wanted to liberate their country from political slavery and foreign rule, they first of all would have to set their house and society in order. अब दूसरा पॉइंट है कि उनका मानना है कि अगर हम समाज को और जो भी फॉरेन, अगर हम चाहते हैं अपनी आज़ादी चाहते हैं और फॉरेनर्स को बाहर करना चाहते हैं, फॉरेन रूल से हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें अपने को ऑर्डर में करना पड़ेगा, प्लस हमें हमारे सोसाइटी को ऑर्डर में करना पड़ेगा और अपने घर को ऑर्डर में करना पड़ेगा। जब हमारे घर में हम अच्छे से सामान रखेंगे, अच्छे सीक्वेंस वाइज में रहेंगे, मैनर में रहेंगे, तभी हम बाहर किसी को कह सकते हैं कि आप अच्छे से रहिए। ठीक। तब इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हमको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। With a diseased society, how could they fight against a foreign enemy? अगर हमारे अंदर ही बीमारियां हैं, हमारे अंदर ही खराबियां हैं, तो हम किस तरह से फॉरेन से लड़ाई करेंगे? फॉरेनर से हम किस तरह से लड़ाई करेंगे? वो भी हमारे दुश्मन से कैसे हम लड़ेंगे? इसीलिए हमें मजबूत रहना पड़ेगा, तब हम अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ सकते हैं। थर्ड, द रिफॉर्मर्स वर्क टू क्योर द सोसाइटी ऑफ ऑल इट्स इल। अब रिफॉर्मर्स का क्या काम है? अब उन्होंने क्या किया? वर्क टू क्योर, सोसाइटी को उसको सही करने में जुट गए। दे कुड अचीव द आइडियल इफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इल्स ओनली, दैट इज द डिप्रोवेबल मीन्स सोचनीय कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम वुमेन की जो कंडीशंस है वो उसी तरह से बरकरार ना रहने दें। They knew that if the position of women was improved, the other evils could not stand for long. उन्हें पता था कि अगर हम एजुकेशन वुमेन की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उनके आगे और कोई बुराइयां नहीं टिक सकती हैं। If liberty is an important pillar of democracy, अगर आप मानते हैं कि लिबर्टी डेमोक्रेसी की इम्पॉर्टेंट पिलर है, तब सो इज इक्वालिटी, इस तरह से इक्वालिटी है। विदाउट इक्वालिटी डेमोक्रेसी कैन नॉट बी कंप्लीट। अगर हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो डेमोक्रेसी का कोई मायने नहीं है। सो द इंडियन रिफॉर्मर्स ट्राई टू गिव इक्वल स्टेटस टू वुमेन इन एवरी फील्ड बाय इम्प्रूविंग देयर लॉ। इसीलिए जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने वुमेन्स की स्टेटस को और उनको अपना जो भी इक्वल स्टेटस समाज में दिलाने की कोशिश की और उनकी जो कंडीशन थी उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। वर्क ऑफ सम रिफॉर्मर्स इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन डिजर्व्स स्पेशल मेंशन। कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स हैं, सुधारक हैं, जिनका स्पेशल प्लेस होना अति आवश्यक है। उन्होंने वुमेन की उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। फर्स्ट क्या है? राजा राम मोहन रॉय। वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ अ वुमन। राजा राम मोहन रॉय डिड laudable work. Laudable means praise, worthy means सराहनीय काम किए। Work in the field of improving the lot of a woman. पहला वर्क है जो कदम उठाया राजा राम मोहन रॉय ने,
किसके उत्थान के लिए? वुमेन के उत्थान के लिए। First of all, he focused his attention towards removing the evil practice of sati. पहले पर उनकी जो निगाह थी किसको हटाने की थी? सती प्रथा को हटाने की थी। It was because of his cooperation that in AD 1829 Lord William Bentinck could declare sati as unlawful. उन्हीं की सहायता से उन्होंने अनुरोध किया विलियम बेंटिक को कि हमारे इंडिया में, हमारी सोसाइटी में एक इविल प्रैक्टिस हो रही है जो सती प्रथा है, उसको यहाँ से हटना चाहिए। तो उन्होंने विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको हटाने की कोशिश की, यानी इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? अनलॉफुल। He himself saved several widows from being burned alive. उन्होंने कई सारे वुमेन को जलने से बचाया, जो चिता में जलने जा रहे थे उनको उन्होंने बचाया। सेकंड, along with the suppression of sati, he also preached in favor of widow remarriage. उन्होंने सती की तो बात की ही, सती के साथ साथ विडो रीमैरिज की भी बात की, without which the suppression of sati could have remained meaningless. इसके लिए अगर सती सिस्टम नहीं या विडो रीमैरिज नहीं शुरू हुआ तो सती का मतलब यहाँ पर कोई मायने नहीं है। He wanted to secure a place of honor for women in the Hindu society. उनका मेन मकसद था, मेन मोटो था हिंदू समाज में वुमेन का स्टेटस, प्लेस बना करके रखना। He quoted extensively from the Vedic literature in order to raise the status of the Hindu women. इन्होंने कुछ लाइनें वैदिक से भी लिया, जिसमें वैदिक लिटरेचर से जिसमें वुमेन के स्टेटस को दर्शाया गया है। To improve the status of women, he also demanded for them the right of inheritance of property. वुमेन की स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने एक और मांग की, क्या? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू प्रॉपर्टी। He also condemned the practice of polygamy as it would not be possible to ensure a place of respect for women unless polygamy was suppressed, and also he also condemned the practice of polygamy. Okay, and also fifth, the Indians were backward in respect of education, and as such they fell prey to various superstitions and useless rituals. Because of less of education, mostly Indians fell in the prey of superstition, means अंधविश्वास में बिलीव करते थे। एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते थे। It was necessary to introduce Western education and literature to fight these evils. Therefore, he helped Lord William Bentinck in spreading English literature and the science in India. अब उनको लगा कि इन सब रिचुअल्स जो सुपरस्टिशन है इसको हटाने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन का लाना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने विलियम बेंटिक की हेल्प की इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने के लिए, जिससे कि हमारे यहाँ से जो भी सोशल इविल्स हैं वो ख़त्म हो सकें। ओके, टुडे ओनली दिस वाज। Tomorrow we will discuss about a work of Ishwar Chand Vidyasagar. So here's your homework. Learn question answer of chapter 7. Okay, beta. So today only this much. Thank you.